అసెంబ్లీలో వ్యవసాయ రంగంపై చర్చ జరుగుతోంది. లైవ్ లో చూద్దాం. Page number 153 and 154. I can't understand if this much facility is given to farmers, the irrigated extent of the land of decreasing from 2014 onwards. Why? The total irrigated area in Telangana is 47.77 lakh acres. But cultivation is like that. Rice area lacks in acres 2013 and 14 madam 20.8%, 2014 and 15 में 14.15% हुआ है और 2015 एंड 16 में 9.51% हुआ है. और मेज के अंदर 7.25 2013 एंड 14 में था, 2014 एंड 15 में 6.91 था और 2015 और 16 में 5.56% रहा. टोटल पल्सेस में 2013-14 के अंदर 5.63% था, 14-15 के अंदर 4.08% था, 2015 एंड 16 में 4.55% रहा. टोटल फूड ग्रेन्स के अंदर मैडम 34.56% 13 एंड 14 में था, 14 और 15 के अंदर 26.13% था. आज 2015 और 16 के अंदर 21.46 है. ये खारी हो गया, राबी आने वाला बाकी है और कुछ परसेंटेज इसमें बढ़ सकता है, मगर ये आप ऑल आउट देखेगा तो फिर भी इतना कम क्यों है? कितना बढ़े तो भी इसका मुकाबला नहीं हो सकता. जब व्हाट हैपेंड, व्हाट आर द रीजन सो फार, व्हाट एक्शन टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इंक्रीज द इरिगेशन एरिया. नोटबंदी की जो गड़बड़ हुई उसके बाद द फार्मर्स इन द स्टेट हैव बीन फेसिंग हार्डशिप आफ्टर द demonetization announced in the November 8. There are severe impact of the demonetization of the Reserve Bank imposed on the rural cooperative banks on accepting the cash deposits in the old currency notes rupees 5,000 and rupees 1,000 just after 4 days. Madam, this has caused severe hardship to the farmers who could not buy seeds and fertilizers for the second crop, Rabi crop, with the old currency note. Subsequently, the Reserve Bank also allowed the farmers to buy the seeds and fertilizers from dealers with the old currency notes of rupees 5,000 and 1,000. Madam, but the damage was done as far as some farmers could not get the seeds and fertilizers in time. Farm laborers also could not get work due to the cash crunch faced by the farmers. The farmers are still suffering as there are very few banks and ATMs in the rural areas of the Gramina banks are not in a position to disburse them in cash. स्पीकर मैडम, क्रॉप लोन्स के बारे में मैं बोलना चाह रहा हूं मैडम आपके जरिए इस हुकूमत को. फार्मर्स आर ऑल्सो नॉट गेटिंग द क्रॉप लोन्स नाउ सिंस दे आर नॉट एबल टू क्लियर ऑफ देयर प्रीवियस लोन्स ड्यू टू द नॉन रिलीज ऑफ द थर्ड इंस्टॉलमेंट्स ऑफ द लोन्स वेवर सब्सिडी बाय द गवर्नमेंट टू द बैंक्स. एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी साहब recently warned the banks not to stop the release of the fresh crop loans to the farmers. He told the banks the government will not hesitate to release the subsidy amount directly to the farmers if the banks deny them fresh loans. I would like to know from the agriculture minister when the government will release the third and fourth installment of the crop loan waiver scheme to the banks. During the rain in the monsoon in the state, the farmers have suffered severe loss and the standing crops in some areas were damaged. The inter-ministerial team visited the state during the November assessment the damage to the flood affected areas. लास्ट सितंबर में एक सेंट्रल गवर्नमेंट की टीम आई थी मैडम, जो यूनियन जॉइंट सेक्रेटरी होम श्री दिलीप कुमार साहब के साथ यहाँ के स्टेट के अंदर विजिट करे. स्टेट के अंदर यहाँ पर हमारे तेलंगाना स्टेट में सिद्दीपेट, करीमनगर, संगारेड्डी और अदर डिस्ट्रिक्ट्स को भी गए लोग. उसके बाद हमारे चीफ मिनिस्टर साहब अनसीजनल जो रेनफॉल हुई थी 31 सेंटीमीटर जो रेन हुई थी उससे कई नुकसानात हुए थे. काकातिया डायनेस्टी के अंदर चीफ मिनिस्टर साहब जो उस टीम को बताए कि 75,000 हमारे पास लेक्स थे और आज की तारीख में हम 46,000 लेक्स को मेंटेन कर रहे हैं जो तबाही हो चुके थे. और भी काम इसका जरिए काम चल रहा है और इंशाल्लाह ताला और जाकर और डेवलपमेंट होगा इस मिशन काकतिया के जरिए. चीफ मिनिस्टर साहब उस सेंट्रल टीम को
तफसीली दौरा कराकर सारी चीजें बताए। और उसके बाद क्या हुआ मैडम, जो हमारे चीफ सेक्रेटरी राजीव शर्मा साहब एंड अदर ऑफिशियल्स आल्सो विजिटेड दिल्ली, और वो लोग उस जो नुकसानात हुए थे उस नुकसानात के लिए सारे तफसीलात दिल्ली को भी लेकर जाकर दिए, जिसका नुकसान 2740 करोड़ रुपए हुआ। और अलग अलग डिपार्टमेंट के तहत देखा गया तो म्युनिसिपल डिपार्टमेंट सफर्ड लॉस ऑफ 848 करोड़, फॉलोड बाय द पंचायत डिपार्टमेंट रुपीज 290 करोड़, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट rupees 192.77 crore, irrigation department rupees 112 crore, and other department also suffered loss totaling to rupees 2740 crores. I want to know how much assistance the government has asked from the central government to payment of the compensation and input subsidy to the farmers in the flood affected areas. और लास्टली मैडम, मैं आपसे ये स्पूरियस सीड्स जो है उसके बारे में मैं कहना चाह रहा हूं, बाय द स्पूरियस सीड्स एंड हुक लॉसेस टू द फार्मर्स, द तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट इज ब्रिंगिंग इन ए न्यू सीड एक्ट. आई रिक्वेस्ट इट विल बी इंट्रोड्यूस इन ऑनगोइंग असेंबली सेक्शन. The act is basically aimed at ensuring fair compensation to the farmers who lose crops during the spurious seeds and severe punishments to the manufacturers and sellers spurious seeds in the state. The state government will bring in a new seeds act in this assembly section. It is ensure compensation to the farmers who are put to loss due to the sale spurious seeds and severe punishments. The manufacturer, traders and the sellers of spurious seeds. लैंड एक्विजिशन के बारे में मैडम लास्ट ये है, लैंड एक्विजिशन फॉर कमिंग अप इरिगेशन प्रोजेक्ट्स इन तेलंगाना स्टेट. टोटल हाउ मेनी एकर्स ऑफ लैंड रिक्वायर्ड, फ्रॉम दिस हाउ मेनी एरियाज ऑफ लैंड इज गवर्नमेंट, फॉरेस्ट एंड प्राइवेट फार्मर्स. टिल नाउ हाउ मेनी एकर्स ऑफ लैंड एक्वायर्ड अंडर द लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 एंड लैंड एक्ट GO नंबर 123 टू द स्टेट गवर्नमेंट. द डिटेल्स ऑफ द कंपोजिशन पेड एंड पेंडिंग देयर ऑफ. मैं आखिरी में यही कहना चाह रहा हूं, आज जो फार्मर्स का मसला है, जो फार्मर्स के ऊपर आज परेशानी आई है अनसीजन पानी की तरफ से और नोटबंदी की तरफ से, और आगे जाकर जो परेशानी आने वाली है, मैं मेरी जानिब, मेरी पार्टी की जानिब, मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की जानिब से गवर्नमेंट से ये डिमांड करता हूं, जितना हो सका आप इस फार्मर्स को हेल्प करिए, फार्मर्स के साथ रहिए, फार्मर्स का साथ दीजिए, और फार्मर्स का साथ देकर आप इस तेलंगाना स्टेट को हायर लेवल पर लेकर जाइए. शुक्रिया.